Hello guys, my name is Nitin Kumar and I am a teacher for biology from BBC group. And guys, today's topic is taxonomical aids. In last class we already discussed about what is taxonomy and after that what is taxon or taxa, or after that we discussed about taxonomical hierarchy. Okay guys, so in the topic of taxonomical hierarchy we already discussed about seven different classes are arranged in a increased or decreased order in taxonomical hierarchy, and the remaining trick of the hierarchy is KFC of GS. This is the remembering trick, or we can say short trick to learn what is the 7 steps of taxonomical hierarchy. Clear guys? So first one is K for kingdom, means this taxon is related to the kingdom, that organism relates which types of kingdom, like animals, animalia or plant. Like F is called like phylum. Phylum is spelled PHYLUM. This is phylum. C for class. C for class. O for order, and F for family. G for genus, and last one is S for species. So these these 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These 7 steps makes a taxonomical hierarchy, means which are very important in the study of classification. Clear? So these 7 steps are included in taxonomical hierarchy. But one thing, if you are classified in any plant, so in the section of phylum, you should write division. So this is only one single change between animals classification and plants classification. Otherwise, all other things remain same. Clear guys? So this is a short trick. KFC of GF. KFC is the very famous fast food chain in India. In every city, in every metropolitan city, you will see a KFC, a very fast food, a big restaurant. So KFC of GS means अगर आपके गांव में कोई किसी ने दुकान चाहे मोमोज की खोल ली हो, तो आप क्या कहेंगे कि KFC of GS. की कहाँ जा रहा हूँ मैं? KFC को जा रहा हूँ. कहाँ? किसका KFC? GS का. GS means खजेंद्र सिंह, गजय सिंह, कुछ भी आता है. KFC of GS. This is the 7 steps of taxonomical hierarchy. Now today's topic is taxonomical aids. Taxonomical aids. AIDS means this is not a disease of AIDS. No, AIDS means additives, means instruments which are useful in the study of taxonomy. Means you can say AIDS means that type of instruments which are very useful in the classification, or we can say very useful in the study of classification. Guys, so taxonomical aids, these are some instruments like this. First of all, according to मैं आपको बता पिक भेज दूंगा नोट्स की, वो लिख सकते हैं. दिस टेक्निकल प्रोसीजर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिफिक फॉर आइडेंटिफिकेशन. नंबर 1, इसमें क्या होता है? एड्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका हर्बेरियम. ये होता है. ये क्या होता है? इसमें जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के स्पीसीमेंट्स लेते हैं हम और उनको क्लासिफाई करके उनको एक कागज की पेपर की शीट पर उनको स्पेसिमेन बनाया जाता है. मतलब उनको लाते हैं कागज की पेपर की शीट पर, उनको ग्लू की हेल्प से या किसी थ्रेड की हेल्प से उनको लगाते हैं, उनको प्रेस करके दबा के रखते हैं, और फ्यूचर में कोई भी बंदा या कोई भी बॉटनिस्ट जो पढ़ेगा बंदा, वो आगे इजीली उसको स्टडी कर सकता है.
तो ये होता है हर्बेरियम। जैसे आपकी 12th क्लास में आएगा, 12th क्लास में मैं आपसे एक फाइल और बनवाऊंगा, उसमें क्या करना है आपको, एक हर्बेरियम फाइल बनानी है। उसमें पेपर शीट्स पर आपको जो हमारे यहाँ प्लांट्स होते हैं वो लेने हैं और उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनको क्लासीफाई करना है कि इस प्लांट्स का नाम क्या है, इसका बॉटेनिकल नेम क्या है और इसका यूज क्या है, इसकी फैमिली कौन सी, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या होते हैं कि एक ऐसा कलेक्शन जहां पर कि आप प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं, प्रेस्ट करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर फर्दर स्टडी। क्लियर, नोट्स में आपको भेज दूंगा, बस समझ लीजिए वो क्या है। नंबर सेकंड एड्स कौन सा है, सेकंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सेकंड साधन कौन सा है स्टडी करने का, दैट इज बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, बॉटेनिकल गार्डन मींस ऐसे गार्डन जहां पे प्लांट्स, बॉटनी रिलेटेड टू प्लांट्स, ऐसे गार्डन जहां पे प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता हो या रखा जाता हो टू स्टडी के लिए। अब देखो, सबसे पहले आपको ये नाम याद आ रहा हो तो बेटा, आपको कभी आप परी चौक से आगे गए हो मेट्रो पकड़ने के लिए, सेक्टर 37 जो बोलते हो, दैट इज द बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। तो वहां पे क्या है, एक गार्डन बना हुआ है और बहुत सारी स्पीसीज, प्लांट्स की बहुत सारी स्पीसीज को वहां पे हमने रखा हुआ है, उनके अकॉर्डिंग, उनके नेचुरल हैबिटेट में हमने उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। क्योंकि देखो, प्लांट्स में जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स अब एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, इसी प्रकार प्लांट भी तो खत्म हो सकते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए हम रखते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको आगे उगाते रहते हैं। ठीक है, तो बॉटेनिकल गार्डन। अब इन दोनों मेन डिफरेंस क्या रहा है, मेन डिफरेंस क्या है, हर्बेरियम में हम प्लांट्स के नॉन लिविंग पार्ट्स को, मतलब आपने काट के पत्ती को रख लिया तो वो आगे ग्रो तो नहीं कर पाएगी ना, तो इस तरीके से हम नॉन लिविंग पार्ट को फाइल्स में लगा के रखते हैं। वहीं पे बॉटेनिकल गार्डन में हम लिविंग, बिल्कुल एक लाइव ट्री को या लाइव हर्ब्स को दिखाते हैं। अच्छा, हर्बेरियम के कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं आपको। सबसे पहला हर्बेरियम का एग्जाम्पल आता है, वो कौन सा है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। रॉयल, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, हर्बेरियम के, हाँ यही हो जाएगा, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। अब कहोगे सर आप हर्बेरियम में बॉटेनिकल गार्डन को क्यों लिख रहे हैं, भैया ये ऐसा गार्डन है जहां पर ये काम तो होता है, मतलब लाइव ट्रीज को तो कल्टीवेट किया ही जाता है, साथ ही साथ में इनकी स्पेसिमेन बना के प्रिजर्व करी जाती है, मतलब हर्बेरियम वाला काम भी किया जाता है। तो दोनों जगह, मतलब ये जो गार्डन है ये दोनों काम कर रहा है, तो दोनों में एग्जाम्पल आया तो नहीं आएगा, आ सकता है। तो हर्बेरियम का एग्जाम्पल रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है आपका, लंदन। लंदन में है, रॉयल नाम समझ जाओ, रॉयल वहां के राजा बड़े रॉयल है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हमारे इंडिया का देखेंगे, इंडिया में क्या, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सेकंड इसका एग्जांपल क्या रहेगा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ये कहाँ है बेटा आपका, ये कोलकाता में है। कहां पर है, कोलकाता में। नंबर थर्ड, और 2-3 एग्जांपल लिखूंगा। नंबर थर्ड, NBRI, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ है आपका, आपकी राजधानी लखनऊ। ठीक है, हमारे यूपी की राजधानी। NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ में, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है जी, ये आप 3 एग्जांपल याद रखिएगा हर्बेरियम के। मैंने बॉटेनिकल गार्डन की बात करी है, दोनों में तो पता है, इसमें स्पेसिमेन प्रिजर्व करते हैं, इसमें हम लाइव ट्रीज को कल्टीवेट करते हैं। इसके एग्जांपल भी आप ये लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है जी, कहां है, लंदन में है। ठीक, सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, न्यूयॉर्क। अब नाम से पता पड़ गया कहां की बात चलेगी, न्यूयॉर्क कहां पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन अमेरिका में है, अमेरिका की सिटी में, न्यूयॉर्क नहीं है। नंबर थर्ड, बर्लिन। बर्लिन बॉटेनिकल गार्डन, बर्लिन से याद आ रहा होगा आपको हिटलर, और हिटलर कहां का था, जर्मनी का। बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में। ठीक है बेटा, चलो अब देश में बहुत घूमिए, इंडिया में आते हैं। हमारे देश में कहां पर है, नंबर 4, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। इंडियन तो मतलब इंडिया में तो होगा, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। ये कहां पर है आपका, कोलकाता। कोलकाता ये दोनों एक जगह नहीं है, ये कहां पर है, ये है आपका हावड़ा में, हावड़ा।
और वो जो है आपका ये मैंने लिखा होगा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये आपका सिबपुर कोलकाता में, सिबपुर याद रखो, इसका कोलकाता जरूर लिखना है बेटा आपको। और नंबर 5 मैं आपको लास्ट में लिखा हूं 5 की, लॉयड, डबल एल ओ आई डी, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, ये कहां के, दार्जिलिंग में, इंडिया दार्जिलिंग। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे 4-5 एग्जाम्पल हैं आपके बॉटनिकल गार्डन के। ठीक है, बाकी हम कल कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।